Good morning, student. Today our topic is liberalization of foreign trade and foreign investment policy. Listen dear, this is Hindi meaning is विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण. First of all, listen carefully, all of you, my dear students. Removal of barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization. Okay. With the liberalization of trade, businessmen are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. Government can use trade barriers to increase or decrease foreign trades and to decide what kinds of goods and how much should come into the country. Investment made by the MNCs is called foreign investment. Any investment is made with the hope that these assets will earn profit. Because most trade and much investment is undertaken by transnational corporation, no country can develop into a irrigation part of the world economy with a substantial presence within our borders. This is now recognized as the most aspiring development countries generally put out to welcome met for tenses. The attitudes are softening so that foreign investment is increasingly tolerated and even encouraged. So that's in our topic is let us return to example of imports of Chinese toys in India. Suppose the Indian governments put a tax on imports of toys. What would happen? Those who wish to import these toys would have to pay tax on this. Because of the tax, buyer will have a pay higher price of important toys. Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian markets and import from China will automatically reduce. Indian toys market will prosper. As you know that what is the meaning of liberalization? Removal of barriers of restriction set by the government is what is known as liberalization. Okay? देखो बेटा, इसको समझने के लिए आपको मैं जो चाइना वाला एग्जांपल बताई थी ना कि चाइना के जैसे हमारे यहाँ क्या है कि ट्रेड बैरियर्स नहीं है, तो जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो हमारे यहाँ मार्केट में आके और बहुत अच्छे से अपने खिलौनों को, अपने टॉयज़ को हमारे यहाँ बेचते हैं. ठीक है. बट अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करती है कि बैरियर्स लगा देती है कि आप जो है अपने जो टॉयज़ हैं उसको अगर बेच रहे हैं तो उससे पहले हमें जो है टैक्स पे आप जो है हमें टैक्स पे करेंगे, उसके बाद आप जो है अपने टॉयज़ को हमारे मार्केट में लाकर बेच सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से क्या होगा कि आपको क्या लग रहा है कि एक तो बिना टैक्स के ही लाके आपके मार्केट में आपके कंट्री में ले आकर कोई गुड्स को सेल कर रहा है, और उसके बाद जब किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लग जा रही है कि अब जो है अब आपको कोई भी सामान बेचना है तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, उसके बाद जो है आप कोई भी सामान जो है हमारे मार्केट में ला सकते हैं. तो शायद जो कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि वो सारी चीज़ें बहुत जो उनके टॉयज़ होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, तो अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करके हमारे पास देगी तो वो टैक्स जो पे करेगी वो अपने सामान के ऊपर रख देगी, उसका लागत जो है वो सामान के ऊपर रखेगी. और सामान जो वो बहुत सस्ता बेच रही थी हमारे मार्केट में, सिंपल सी बात है कि वो जो सामान है वो हमारे मार्केट में महंगा बिकने लगेगा. और जो जैसे चाइना से जो सामान हमारे यहाँ आ रहा है तो जब महंगा बिकेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, और लोग खरीदेंगे नहीं तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. और जो हमारे इंडियन टॉयज़ मेकर्स हैं, ठीक है, वो उनकी प्रॉस्पेरिटी जो है हमारे कंट्रीज़ में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. जैसे वो लोग रिड्यूस होंगे गवर्नमेंट का टैक्स पे करके,
और हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ के जो टॉयज़ मेकर होंगे उनको वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उन्हें प्रॉस्पेरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। टैक्स ऑन इम्पोर्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। It is called a barriers because some restrictions has been set up. Government can use trade barriers to increase or decrease regulating foreign trades and decide what kinds of good and how much of each should come into a country. The Indian government after independence had put barriers to foreign trades and foreign investment. This was considered necessary to protect the producers within the country from foreign competition. Industries were just coming up the 1950 and 1960 and competition from important and that stage would not have allowed these industries to come up. Thus, Indian allowed important of only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. Note that all developed countries during the early stage of development have given protection to domestic producers through a variety of means. Listen here. Export and import of goods and services is called foreign trade. In simple words, foreign trade creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic markets to their own countries. Producers can sell their produce not only in the markets located with the country but can also compete in market located in other countries of the world. देखो बेटा, ट्रेड बैरियर्स क्या है? ट्रेड बैरियर्स जो होता है वो एक तरह का एक एग्जाम्पल है। जब आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हो या फिर इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। इसी को जो है ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है। जैसे मान लो कि अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी मार्केट में, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब टैक्स पे करना पड़ेगा तो वो एक तरह से आपकी गति थी, यानी कि जो आपके व्यापार की गति थी उसके ऊपर क्या किया गया है? बैरियर्स लगा दिया गया है। और गवर्नमेंट जो होती है इस तरह के बैरियर्स का यूज़ तब करती है कि जब उसे लगता है कि जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनमें जो बढ़ोतरी होने लगती है, तो उनको रिड्यूस करने के लिए और किसी भी वस्तु को मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है और उसको कितनी क्वांटिटी में हमें क्या करना है? इंपोर्ट करना है। ये सारी जो है डिसीज़न गवर्नमेंट खुद लेती है। और जैसे मान लो कि जब वो खुद डिसीजन लेती है कि हमें कौन सा सामान कितना मंगाना है और कौन सा सामान नहीं मंगाना है, तो इस तरह की अगर मंगाना है तो उसके ऊपर किस तरह का हमें टैक्स लगाना है। तो ये जो टैक्स लगाती है कोई भी सामान को मंगाने के लिए, जब वो किसी तरह का टैक्स लगाती है, उसे हम जो है ट्रेड बैरियर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो, जब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला था, ठीक है बेटा, तो उस समय क्या हुआ? जितने भी हमारे फॉरेन ट्रेडर्स थे, उनके ऊपर जो है रोक लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी मतलब अगर किसी और देश का सामान हमारे मार्केट में आता है बिकने के लिए, तो हमारी जो खुद के कंट्री के जो भी गुड्स हैं उनको जो है कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंपटीशन के लिए 1950 से 1960 का जो टाइम पीरियड था, उस समय जो है उस समय से पहले जो है इसके ऊपर जो है क्या किया गया था? बैरिकेडिंग इसके ऊपर रोक लगा दिया गया था। लेकिन 1950 और 1960 का जो टाइम पीरियड था, उस समय बहुत सारे नए इंडस्ट्रीज़ बने और उस समय जो है गवर्नमेंट को ये लगा कि अब जो है देखो,
सॉरी 1950 और 1960 का जो टाइम पीरियड था, उस समय बहुत सारे जो है नए नए इंडस्ट्रीज़ जो है बने, और जो इस समय का जो इंपोर्ट का जो कंपटीशन था, अगर उस समय जो है मतलब ट्रेड को अगर खुला छोड़ दिया गया होता, ट्रेड मार्केट को, व्यापारी बाजार को अगर खुला छोड़ दिया गया होता, तो शायद हमारे सामान जो है जल्दी मार्केट में आकर, और जो कंपटीशन होना था विदेशी गुड्स के साथ, वो शायद फेस नहीं कर पाती। इसी वजह से जो है उस हमारे कंट्रीज़ में जो भी चीज़ क्या की जाती थी, मंगाई जाती थी बाहर से, विदेशों से जो चीज़ें मंगाई जाती थी, उसमें मशीनरी और इसके बाद फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम, यही सारी चीज़ों को परमिशन दिया गया कि यही सारी चीज़ें आ सकती हैं। देखो बेटा, अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें देखते हो कि जितने भी कंट्रीज़ थे, उन सारी कंट्रीज़ ने एक काम किया था कि जब उनको आज़ादी मिली, प्रारंभिक चरण था, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो था, उस स्टेज में उन लोगों ने क्या किया कि अपने जितने भी उनके जो घरेलू प्रोडक्शन थे, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स थे, उनको जो है उन लोगों ने संरक्षण दिया, ठीक है, कंजर्व किया। इसलिए क्योंकि अभी उनके जो गुड्स थे वो ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड का कंपटीशन नहीं कर सकते थे। ठीक वही जो है पॉलिसी हमारी इंडिया ने भी अपनाया, और हमारे यहाँ जो ट्रेड बैरियर्स लगाया गया कि कोई और कंट्री हमारे यहाँ के जो सामान है, जो घरेलू उत्पाद हैं, ठीक है, उनको जो है इस तरह के कंपटीशन को नहीं फेस करना पड़े। हमारी इंडिया में जो है बेटा, removing barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization. With liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import, much less restriction that before, and therefore said to be more liberal. इंडिया में जो है 1991 का जो टाइम पीरियड था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, और जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने ये निश्चय किया कि अब हम जो है इंडियन प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, अब हम ग्लोबलाइजेशन जो कंपटीशन है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो कंपटीशन है, अब वो समय आ चुका है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों तक भेज सकते हैं, और विदेश के सामान भी हमारे यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमारे यहाँ के जो गुड्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत मतलब अच्छा चेंज देखने को मिल रहा है। और जो ये गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो ये डिसीज़न लिया, ये बहुत ही मतलब बहुत ही प्रभावशाली था, और इसी वजह से जो है क्या किया गया कि जो बैरियर्स लगाए गए थे, जो मतलब जब आज़ादी के समय जो हमारे यहाँ बैरियर्स लगाए गए थे कि कोई और देश का सामान हमारे यहाँ नहीं आ सकता है, बस बहुत जो हमारे यहाँ जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब वो जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी, जो बैरियर्स लगाए गए थे, उस बैरियर्स को कम कर दिया गया, ठीक है, काफ़ी सीमा तक हटा दिया गया, और इस तरह से जो है अब कोई भी, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, बहुत ईजिली किसी भी देश से किसी भी गुड्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स बहुत ईजिली किया जा सकता है, ठीक है। और इस वजह से जो विदेशी जो फॉरेन कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज़ थी, उन लोगों ने क्या किया कि हमारे यहाँ जो है अपने बहुत सारे ऑफिसेस बनाए, और जो सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो बैरियर्स लगाए थे, वो बैरियर्स जब हट गया, उसी को हिंदी में उदारीकरण या फिर लिबरलाइजेशन कहते हैं। ओके, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आपको लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, अब जो ये लिबरलाइजेशन से क्या हुआ कि जो जितने भी व्यापारी थे तो उनको एक फ्रीडम मिल गई, और उन लोगों ने जो है जो जितने भी ट्रेडर्स थे उनको एक फ्रीडम मिल गई, और उस फ्रीडम के अनुसार वो लोग अपना निर्णय ले सकते थे, ठीक है, कि उन्हें क्या आयात करना है या क्या निर्यात करना है, मतलब क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है।
और जो गवर्नमेंट थी वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ही कम जो है रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर रखी थी, ठीक है। और इसीलिए उसे जो है बहुत ज़्यादा अधिक उदार कहा जाता है, ठीक है, यानी कि मोर लिबरल कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसका हिंदी मीनिंग है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। The World Trade Organization (WTO) is the successor organization of the General Agreement on Tariffs and Trade. It is legal and institutional foundation of multilateral trading system. It provides the principal contractual obligation determine how governments frame and implement domestic trade legislation and regulation. It is the platform on which trade relation among countries evolves through collective debates, negotiations, and adjustments. It is highly significantly influenced this liberalization process in most of the developing countries, including India. The aim of WTO is to conduct international trade among countries to countries of the world in non-discriminatory manner. बेटा WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात बेटा कि ये जो है we have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. These organizations say that all barriers to foreign trades and investment are harmful. There should be no barriers. Trade between countries should be free. All countries in the world should liberalize their policies. World Trade Organization (WTO) is one such organization whose aim is liberalization international trade, started at the initiative of these development countries. देखो कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में विदेशी व्यापार के लिए, ठीक है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिबरलाइजेशन थी उसकी बहुत ज़्यादा सराहना की, बहुत अच्छा माना उन लोगों ने, बहुत मतलब कहा कि हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि सही हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनके जो बीच जो है कैसा ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, फ्री ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। उनके बीच में किसी भी तरह का बैरियर्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो। तो पर अगर किसी तरह का फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर किसी तरह का अगर हम किसी तरह का बैरियर्स लगाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। इसीलिए जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको अपनी पॉलिसीज़ जो है लिबरल बनानी चाहिए।